इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा पर खर्च बढ़ा है। 1951-52 में देश की जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका शिक्षा में खर्च केवल 0.64% था और 2015-16 में ये 3% तक हो गया है एंड हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। और पिछले कुछ वर्षों से यह यहीं पर स्थिर है, इससे न बढ़ा है और न घटा है। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% in 1951 to 74% in 2010-11. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. However, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among males is nearly 16.6% higher than females, and it's about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. In 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala to 64% in Bihar. The primary school system has expanded to over 8.58 lakh in 2013-14. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literate population of India. केवल शिक्षा पर खर्च में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसके अलावा जो शिक्षा दर है, साक्षर दर है, लिटरेसी रेट है, वो भी 18% 1951 में से 74% 2010-11 में बढ़ी है। यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि साक्षरता केवल व्यक्ति का अधिकार ही नहीं है, यह तो हमें समझना है कि एक ज़रूरत है, नागरिकों की ज़रूरत है उनको बेहतर व्यक्ति, बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए। हालांकि पुरुषों की साक्षरता दर औरतों से ज़्यादा है और शहरी क्षेत्र में भी ये अंतर कायम है। उदाहरण के लिए 2011 की बात करें तो केरला में जो लिटरेसी रेट है वो 94% है, जबकि बिहार में ये मात्र 62% है। हालांकि प्राथमिक जो स्कूल हैं, व्यवस्था है, उसमें उसका जो सिस्टम है उसका विस्तार हुआ है, लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। यह पहल केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों और समुदायों के साथ मिलकर शुरू की है। इसके अलावा
ब्रिज कोर्सेज, बच्चों को वापस स्कूल में लाया जाए, इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मिड डे मील स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की संख्या को सुनिश्चित किया जा रहा है। उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनको पोषण की दृष्टि से सुधार किया जा रहा है। ये नीतियां इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम भारत की जनसंख्या के साक्षरता को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। द 12th plan endeavor to raise the country's gross enrollment rate ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25 to 2% by 17-18 and to reach the target of 30% by 2020 to 21, which would be broadly in line with world average. The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization, and networking in the use of information technology. The plan also focuses on distance education, convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see the increase in the number of college universities, enrollment of students, and recruitment of teachers from 1951 to 2015-16. तो हम देखते हैं 2015-16 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 14,38,000 है, जो 1950-51 में मात्र 24,000 थी। बात आती है, क्या केवल प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा में सुधार किए जा रहे हैं? उच्चतर शिक्षा में क्या कोई सुधार नहीं किया जा रहा? ऐसा नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हायर एजुकेशन में भी जो संख्या है, एनरोलमेंट रेशियो है, बच्चों का 18 से 23 वर्ष साल के युवाओं का, वो बढ़ा है और अब उसको 25.2% से 30% तक करने का टारगेट है, का लक्ष्य है। यहाँ पर बच्चों का शिक्षा तक पहुँच हो, प्रवेश हो, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, पाठ्यक्रम में सुधार किए जाएं, वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस किए जाएं और सूचना प्रौद्योगिकी से शिक्षा को जोड़ा जाए शामिल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक अनौपचारिक संबंधी व तकनीकी सूचना संबंधी संस्थानों पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले 50 वर्षों की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश की जनसंख्या को बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं: शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। शिक्षा के बाद दूसरा फैक्टर आता है स्वास्थ्य। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट
Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? The health of a person helps him to realize his or her potential and the ability to fight illness. He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private sectors. सवाल उठता है, क्या कोई कंपनी, क्या कोई इंस्टीट्यूशन, क्या कोई फर्म अस्वस्थ व्यक्ति को काम देने के लिए तैयार होगी? क्या अस्वस्थ व्यक्ति उस कंपनी के उत्पादन में, मुनाफे में बढ़ोतरी कर पाएगा? सकल और विलास का उदाहरण हमारे सामने है। जहाँ सकल स्वस्थ है वह परिवार, समाज और देश के उत्पादन में बढ़ावा देने में सहायक है, जबकि विलास अशिक्षित है और अनपढ़ और अस्वस्थ है और वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम नहीं है। तो हम यहाँ ये देख पाते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार आवश्यक है। देश को, समाज को और परिवार को स्वस्थ नागरिक प्रदान करना देश की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। और समाज के पिछड़े हुए वर्गों की ओर इस लाइन में, इस दृष्टि से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 50 वर्षों की बात करें, 5 दशकों की बात करें, तो हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास हुआ है और प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो है उसमें मैन पावर ज़रूरत के अनुसार बढ़ा है। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. IMR infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 37 in 2015. Crude birth rate have dropped to 20.8 and death rates to 6.5 in the same duration of time. Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life, marked by self-confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and the child and child care. यहाँ हम पाते हैं कि अगर देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, वो ये दिखाती है कि देश के लोगों के जीवन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, उनमें आत्मविश्वास है। तो हम देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा 68 साल से बढ़ी है। पहले जो 2014 में 68 साल थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 147
147 1951 में थी, वो घटकर 37 तक पहुंची है 2015 में। इस तरह से हम पाते हैं कि शिशु मृत्यु दर में कटौती में गिरावट, बच्चों को संक्रमण से सुरक्षा और माँ और बच्चे के पोषण का ध्यान इसमें शामिल है। There are many places in India which do not have even basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just for states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. क्या संपूर्ण देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर समान है? ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या केवल 381 है। डेंटल कॉलेजेस भी 300 से एक ज़्यादा है और देश के केवल 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अधिकतम मेडिकल कॉलेजेस हैं। थैंक्स।